maternal pelvis. First, we will take the maternal pelvis. Pelvis is a bone which is in turn made up of four bones. Okay, it is a bone which is in turn made up of four bones. What are the four bones? It is sacrum, coccyx, and two innominate bones. Why it is called as innominate? क्योंकि जब ये बोन डिस्कवर हुई थी तो इसका कोई नाम नहीं रखा गया था. ओके, इनोमिनेट का मतलब होता है नो नेम. ये जो इनोमिनेट बोन है फिर ये थ्री बोन से मिलकर बनती है. दैट इज इलियम, ईशियम एंड pubis. So what is pelvis? Pelvis is a bone which is made up of four bones, that which is a fusion of four bones, that is sacrum, coccyx and two innominate bones. Innominate bones किससे मिलके बनते हैं? Innominate bones are made up of three bones, that is ilium, ischium and pubis. Then what are the joints? Basically three type of joints are present in the pelvis. First one is the pubic symphysis. This is a type of fibrocartilaginous joint. This part you can see in the image, this part is the pubic symphysis. तो इसमें type of joint कौन सा है? This is the fibrocartilaginous joint. Next one is the sacroiliac joint, which is a type of synovial joint. Okay. Next is the sacroiliac, which is a type of synovial joint. And third one is the sacrococcygeal, which is a type of synovial hinge joint. Okay, sacrococcygeal. तो तीन टाइप ऑफ जॉइंट्स है हमारे पास. प्यूबिक सिम्फाइसिस विच इज द टाइप ऑफ फाइब्रोकार्टिलेजिनस जॉइंट. देन वी हैव द सैक्रोइलियक जॉइंट which is a type of synovial joint, and third one is the sacrococcygeal joint. It is a type of synovial hinge joint. Okay, what we had discussed, सबसे पहले हमने देखा कि pelvis क्या होता है. Pelvis is a bone which is made up of fusion of four bones. कौन कौन से बोन्स हैं? सैक्रम, कॉकेक्स एंड टू इनोमिनेट बोन्स. इसको इनोमिनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनिशियली इसका कोई नेम नहीं था. इनोमिनेट का मतलब होता है नो नेम. जो इनोमिनेट बोन है वो भी थ्री बोन के फ्यूजन से बनता है. दैट इज इलियम, ईशियम एंड प्यूबिस. उसके बाद हमने जॉइंट्स देख लिए. प्यूबिक सिम्फाइसिस इज अ टाइप ऑफ फाइब्रोकार्टिलेजिनस जॉइंट. Then we have the sacroiliac, which is a type of synovial joint, and then we have the sacrococcygeal, which is a type of hinge joint. Okay, तो ये बेसिक चीजें थी पेल्विस के बारे में. अब हम डिस्कस करेंगे मैटरनल पेल्विस. लेट मी रब दिस फर्स्ट. ओके, तो जो पेल्विस होता है इट इज डिवाइडेड इनटू two parts. That is the true pelvis and the false pelvis. किससे डिवाइड होता है ये? डिवाइड बाय द pelvic brim. ओके, तो अभी हम देखेंगे बाउंड्रीज ऑफ pelvic brim. pelvic brim की बाउंड्रीज ये आप फिगर में देखो, इसमें 9 पॉइंट्स होते हैं. ओके, सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है दिस इज द pubic symphysis. Next is the pubic crest. Third one is the pubic tubercle. Fourth one is the pectineal line. Fifth is the iliopubic eminence. Sixth is the iliopectineal line. And seventh is the sacroiliac. This part is the sacroiliac articulation. And this is the ala of sacrum.
एंड दिस इज द सैक्रल प्रोमोंटरी। तो बाउंड्रीज ऑफ पेल्विक ब्रिम में क्या होता है, बेसिकली 9 टाइप, इसमें 9 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द सिम्फाइसिस प्यूबिस, सेकंड वन इज द प्यूबिक क्रेस्ट, थर्ड इज द प्यूबिक ट्यूबरकल। आप ऐसे याद कर लो कि आगे से जाएंगे तो सी पहले आएगा, और तो इसलिए क्रेस्ट पहले आएगा और ट्यूबरकल टी बाद में आता है, तो ट्यूबरकल जो है वो बाद में आएगा। ये जस्ट याद करने का एक तरीका है। उसके बाद है पेक्टिनियल लाइन, देन वी हैव द इलियोप्यूबिक एमिनेंस, उस उसके बाद है इलियोपेक्टिनियल लाइन, sacroiliac articulation, anterior border of the ala of sacrum and sacral promontory. So this is the boundaries of pelvic brim. Okay, अब pelvic brim के जो ऊपर वाला पार्ट होता है, this is the false pelvis, और pelvic brim के जो नीचे वाला पार्ट होता है, that is the true pelvis. Okay, तो true pelvis क्या होता है, below the pelvic brim. ये जो अंदर वाला पार्ट दिख रहा है इस फिगर में, ये वाला पार्ट, ये होगा हमारा ट्रू पेल्विस, और बेसिकली हमें ट्रू पेल्विस ही पढ़ना है। ट्रू पेल्विस इज ऑफ ऑब्स्टेट्रिकल इंपॉर्टेंस। ओके, तो हमने क्या देखा कि जो पेल्विस होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ट्रू एंड फॉल्स। किस चीज से डिवाइड होता है, थ्रू द पेल्विक ब्रिम। फिर हमने पेल्विक ब्रिम की बाउंड्रीज देख लिया, और देख लिया कि पेल्विक ब्रिम के ऊपर वाला पार्ट इज द फॉल्स पेल्विस एंड पेल्विक ब्रिम के नीचे वाला पार्ट इज द ट्रू पेल्विस। ओके, फिर कुछ एबनॉर्मेलिटीज होती हैं पेल्विस में। फर्स्ट वन इज द रॉबर्ट पेल्विस। रॉबर्ट पेल्विस में क्या होगा, अगर, लेट मी रब दिस फर्स्ट। रॉबर्ट पेल्विस में क्या होगा, अगर बोथ एला आर एब्सेंट। ओके, यहाँ पे जो हमने अभी देखा था, ये जो 8 वाला है, ये वाला एला और इधर की साइड वाला एला, अगर दोनों एब्सेंट होंगे तो दिस इज द रॉबर्ट पेल्विस। बेसिकली आप याद कर लो, जैसे रॉबर होता है ना, रॉबर चोर, तो चोर आया, उसने दोनों एला चुरा लिए। इस तरीके से याद कर लो कि रॉबर्ट पेल्विस में क्या होता है कि चोर ने दोनों एला चुरा लिए। ओके, नीगल्स पेल्विस में क्या होता है, सिर्फ एक सैक्रल एला जो होता है वो एब्सेंट होता है। ओके, और थर्ड होता है रैकेटिक पेल्विस। रैकेटिक पेल्विस किस में दिखता है, रिकेट्स में दिखता है। इसमें क्या होता है, रिकेट्स में बेसिक एक तरह की बोनी एबनॉर्मेलिटी होती है। इसमें क्या होता है कि एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, किसका, इनलेट का। ओके, और आउटलेट में भी क्या होता है, डायमीटर इंक्रीज कर जाता है। ओके, तो पेल्विस में हमने देखा कि एबनॉर्मेलिटी में क्या है कि रॉबर्ट पेल्विस, रॉबर्ट पेल्विस में क्या है कि दोनों एला एब्सेंट होंगे, चोर आया, रॉबर आया, उसने दोनों एला चुरा लिए। नीगल्स पेल्विस में क्या है, वन सैक्रल एला इज एब्सेंट। और रैकेटिक पेल्विस में क्या है, ये रिकेट्स में दिखता है। इसमें बेसिकली सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स होती है, इस वजह से जो डायमीटर होता है वो बढ़ जाता है। अब हम अपना बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं जो है ट्रू पेल्विस। अब जो ट्रू पेल्विस होता है वो डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में, इनलेट, कैविटी एंड आउटलेट। तो हम एक एक करके देखेंगे, इनलेट क्या होता है और कैविटी क्या होता है, आउटलेट क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे इनलेट। इनलेट, इसका शेप कैसा होता है, शेप होता है राउंड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इट इज ट्रांसवर्सली ओवल। इसका मतलब क्या हुआ, ये कुछ इस तरीके का होता है। तो इसमें आपको देखो कि जो एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर होता है वो नैरोएस्ट होता है, और जो ट्रांसवर्स डायमीटर होगा इसका, ये होगा वाइडेस्ट। तो शेप ऑफ द इनलेट इज द राउंड, नैरोएस्ट क्या होगा, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर इसका नैरोएस्ट होगा, और वाइडेस्ट होगा इसका ट्रांसवर्स डायमीटर। ठीक है, उसके बाद एक होता है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या होता है, ये जो इनलेट का प्लेन होता है ना, ये जो इनलेट का प्लेन है पूरा, दिस इज नॉट हॉरिजॉन्टल, ये पूरा स्ट्रेट नहीं होता। ये क्या करता है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाता है। तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या होता है,
प्लेन ऑफ इनलेट इज नॉट हॉरिजॉन्टल, थोड़ा सा फॉरवर्ड की तरफ टिल्ट होता है और हॉरिजॉन्टल के साथ जो है वो कुछ एंगल बनाता है। तो वो एंगल कितना होता है? इट इज द 55 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। क्या होता है ये? टिल्टेड फॉरवर्ड्स। ओके, तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्यों होता है? क्योंकि जो प्लेन होता है इनलेट का वो स्ट्रेट नहीं होता, हॉरिजॉन्टल नहीं होता, थोड़ा सा फॉरवर्ड की तरफ टिल्ट होता है। तो ये जो एंगल होता है 55 डिग्री बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ। उसके बाद हम इसमें डायमीटर देखते हैं। तो इनलेट के कौन कौन से डायमीटर होंगे? एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर एंड द ऑब्लिक डायमीटर। ठीक है, लेट मी रब दिस फर्स्ट। ओके, कौन कौन से डायमीटर है? एंटीरियो पोस्टीरियर, ट्रांसवर्स एंड ऑब्लिक डायमीटर। सबसे पहले हम देखेंगे एंटीरियो पोस्टीरियर। एंटीरियो पोस्टीरियर जो होता है, फिर इसके भी 3 टाइप्स के होते हैं एंटीरियो पोस्टीरियर। फर्स्ट वन इज द ट्रू कॉन्जुगेट, ऑल्सो नोन एज द एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट। ओके, तो ट्रू कॉन्जुगेट इज ऑल्सो नोन एज द एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट। अब आप इस इमेज में देखो ये कहाँ से एक्सटेंड कर रहा है, आपको अच्छे से विजुअलाइज हो जाएगा जो इमेज है। फर्स्ट वन इज द ट्रू कॉन्जुगेट। यहाँ पे देखो टिप ऑफ द, दिस इज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? टिप ऑफ सैक्रल प्रोमोन्ट्री से लेके प्यूबिक सिम्फाइसिस के टिप तक ये जाता है। ओके, इसका लेंथ कितना होता है? इसका लेंथ होता है 11 सेंटीमीटर। तो ये कहाँ तक जाता है? सपोज ये है हमारी सैक्रल प्रोमोन्ट्री और ये है प्यूबिक सिम्फाइसिस, तो ये यहाँ से जाता है। ओके, दिस इज द ट्रू कॉन्जुगेट, 11 सेंटीमीटर का होता है। कहाँ से जाता है? सैक्रल प्रोमोन्ट्री से लेके प्यूबिक सिम्फाइसिस की टिप तक जाता है। फिर हमारे पास होता है सेकंड ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट। ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट कहाँ से जाता है? ये भी सैक्रल प्रोमोन्ट्री से जाता है, लेकिन कहाँ तक जाता है? मिडिल पार्ट ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस तक। इसकी लेंथ कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। फिर थर्ड वन हमारे पास होता है डायगनल कॉन्जुगेट। डायगनल कॉन्जुगेट भी कहाँ तक जाता है? फ्रॉम द सैक्रल प्रोमोन्ट्री टू द लोअर पार्ट ऑफ द pubic symphysis. This is basically 12 to 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज द ट्रू कॉन्जुगेट, इट इज आल्सो नोन एज द एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट। नेक्स्ट वन इज द ऑब्स्टेट्रिक एंड थर्ड वन इज द डायगोनल कॉन्जुगेट। ओके, अब हम क्लिनिकली सिर्फ और सिर्फ डायगोनल कॉन्जुगेट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पीवी के थ्रू हम इसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन हमें ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट जानना है, क्योंकि ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट स्मॉलेस्ट डायमीटर होता है, एंटीरियो पोस्टीरियर में स्मॉलेस्ट होता है ये, इसकी ऑब्स्टेट्रिकल इंपॉर्टेंस होती है एट द टाइम ऑफ वेजाइनल डिलीवरी। तो हमें इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे? हम पीवी करके हम निकालेंगे डायगोनल कॉन्जुगेट। ठीक है, और उसके बाद फिर वहां से डायगोनल कॉन्जुगेट में से 1.5 से 2 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा obstetric conjugate. In order to assess obstetric conjugate, you have to subtract 1.5 to 2 centimeter from the diagonal conjugate. Okay? फिर हमारा नेक्स्ट हमने एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसवर्स डायमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर क्या होता है? पेल्विक इनलेट का लार्जेस्ट डायमीटर होता है। ठीक है, तो लार्जेस्ट डायमीटर कौन सा होता है पेल्विक इनलेट का? ट्रांसवर्स डायमीटर। ये कहां से कहां तक होता है? बिटवीन 2 डिस्टेंट पॉइंट्स ऑन इलियोपेक्टिनियल लाइन। आप फर्स्ट इमेज में देखो, इलियोपेक्टिनियल लाइन जो होती है वो इसके बीच का जो डिस्टेंट पॉइंट होता है, बेसिकली यहाँ कुछ होता है ये। ठीक है, तो दिस इज द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ पेल्विक इनलेट। कितना होता है ये? 13 सेंटीमीटर।
उसके बाद फिर आता है हमारा ऑब्लिक डायमीटर। ऑब्लिक में हमारे पास दो होते हैं, राइट ऑब्लिक एंड द लेफ्ट ऑब्लिक। राइट ऑब्लिक कहाँ से एक्सटेंड करता है? राइट सैक्रोइलियक जॉइंट से टू लेफ्ट इलियो, दिस इज प्यूबिक एमिनेंस। राइट वाला कहाँ से? आपकी स्क्रीन शो नहीं हुई है। सबके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है? हेलो नो मैम। नो मैम। बच्चों, आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? नो मैम, सही आ रही है हमको स्क्रीन। जिसको स्क्रीन शो नहीं हो रहा, एक बार वो लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करो। आई थिंक सम नेटवर्क इश्यूज देयर। ओके, ऑब्लिक डायमीटर में क्या होता है? राइट ऑब्लिक एंड द लेफ्ट ऑब्लिक। राइट ऑब्लिक एक्सटेंड फ्रॉम द राइट सैक्रोइलियक जॉइंट टू लेफ्ट इलियोप्यूबिक एमिनेंस। और जो लेफ्ट वाला होगा वो इसका उल्टा होगा। कैसे होगा? लेफ्ट सैक्रोइलियक से जाएगा ये राइट इलियोप्यूबिक एमिनेंस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपना ट्रू पेल्विस के डायमीटर्स देख लिए। इसमें जो इंपॉर्टेंट होता है ऑब्स्टेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज द ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट। ठीक है, ट्रांसफर, आप इस पर इसमें याद करने की क्या चीजें हैं? आपको याद रखना है कि ट्रांसवर्स डायमीटर इज द लार्जेस्ट डायमीटर। ठीक है, और ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट जो एंटीरियर डायमीटर में सबसे ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, उसके बाद है ये जो ऑब्लिक डायमीटर होता है, बेसिकली दिस इज ऑफ 12 सेंटीमीटर। फिर हम आ जाते हैं पेल्विक कैविटी पे। अब पेल्विक कैविटी के बाउंड्री सबसे पहले हम देखेंगे। बाउंड्रीज है सुपीरियरली बाय द pelvic brim and inferiorly by the plane of least pelvic dimension। अभी हम नीचे देखेंगे कि लीस्ट पेल्विक डायमेंशन प्लेन क्या होता है, कहाँ पे होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। अभी आप बस ये देख लो कि पेल्विक कैविटी की बाउंड्रीज क्या हैं। pelvic cavity superiorly bounded by the pelvic brim and inferiorly by the plane of least pelvic dimension, anteriorly by the pubic symphysis and posteriorly by the sacrum। Okay, so these are the boundaries of the pelvic cavity। pelvic cavity याद करना बहुत इजी है। इसमें एंटीरियो पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स सारा डायमीटर जो होता है इसका 12 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशन। क्या होता है ये? सपोज करो ये आपका पेल्विस की कैविटी, पेल्विस का पार्ट है। तो यहाँ पे जो ईशियल स्पाइन्स निकले होते हैं ना, जहां पर ये हमारा ईशियल स्पाइन है, तो इस वाले एरिया से जो प्लेन पास करेगा उसको हम बोलेंगे लीस्ट पेल्विक डायमेंशन का प्लेन होता है। अब प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशन की बाउंड्रीज क्या क्या होती हैं? इसके एंटीरियर, जो लीस्ट पेल्विक डायमेंशन के एंटीरियर साइड क्या होगा? लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस का सबसे ज्यादा नीचे वाला, सॉरी, लोअर बॉर्डर। इसके लेटरली क्या होगा? मैंने आपको अभी बताया ईशियल स्पाइन्स होगा इसके लेटरली, और पोस्टीरियरली जंक्शन ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ सैक्रल वर्टिब्रा। ठीक है, प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशन हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये इसकी ऑब्स्टेट्रिकल इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे डायमीटर सबसे ज्यादा कम होता है, स्मॉलेस्ट पेल्विक डायमीटर जो होता है वो हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर डीप ट्रांसफर अरेस्ट हो सकता है, तो इस वजह से हमें इसको पढ़ना जरूरी है। प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशन क्या होता है? जो ईशियल स्पाइन्स का जहां पर प्रेजेंट होते हैं उससे जो प्लेन पास करता है, दैट इज द प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशन। एंटीरियर साइड में it is bounded by the lower border of pubic symphysis and posterior side में fourth and fifth sacral vertebra का junction and lateral में ischial spine। इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है? सबसे नंबर 1 इंपॉर्टेंस है इसकी, डीप ट्रांसफर्स अरेस्ट अकर हियर। उसके बाद
इंटरनल रोटेशन, अगर ये डायमीटर जरा सा भी कम होगा तो यहाँ पे अरेस्ट हो जाएगा ट्रांसवर्सली। जो इंटरनल रोटेशन होता है ना, ये मैं आपको आगे बताऊंगी, मतलब लेबर वाले पार्ट में कि रोटेशन वगैरह क्या होता है। बस इतना आप देख लो कि यहाँ पे डीप ट्रांसफर अरेस्ट हो सकता है और इसी पॉइंट पे इंटरनल रोटेशन होता है। इसके अलावा एक्सटर्नल ऑस जो होता है वो भी यहीं पे लाई करता है, एट द लेवल ऑफ ईशियल स्पाइन। इसके अलावा क्या है, साइट ऑफ फॉर पुडेंडल नर्व ब्लॉक, पुडेंडल नर्व ब्लॉक जो हम करते हैं वो भी यहीं पे करते हैं। इसके अलावा क्या होता है, लिवेटर एनआई मसल जो होते हैं, लिवेटर एनआई मसल ओरिजिनेट फ्रॉम हियर। तो प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे, इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। क्या है इसकी इंपॉर्टेंस, कि डीप ट्रांसफर अरेस्ट अकर हेयर, इंटरनल रोटेशन यहाँ पर होते हैं, एक्सटर्नल ऑस यहाँ पर लाई करता है, साइट फॉर पुडेंडल नर्व ब्लॉक भी यही होता है, और लिवेटर एनआई मसल जो ओरिजिनेट होती है वो भी यहीं से होती है। ठीक है। मिड पेल्विस क्या होता है, मिड पेल्विस होता है ना प्लेन एट द लेवल ऑफ ईशियल स्पाइन। ठीक है। तो प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशन की ऑब्स्टेट्रिकल इंपॉर्टेंस होती है, इसलिए हमको पढ़ना होता है। जैसे अब मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ईशियल स्पाइन की से जो प्लेन पास करता है इसको हम बोलते हैं लीस्ट पेल्विक डायमेंशन। इसकी बाउंड्रीज हमने देख लिया है और इसका ऑब्स्टेट्रिकल इंपॉर्टेंस हमने देख लिया है। जीरो, जैसे अभी अगर आपने लेबर वगैरह पढ़ा होगा, आपने देखा होगा जीरो स्टेशन, लेट मी रब दिस फर्स्ट। तो जो जीरो स्टेशन होता है वो भी यहीं पे लाई करता है, एट द प्लेन ऑफ ईशियल स्पाइन जहां पर होता है ना, वहां पे जीरो स्टेशन होता है। मैं आगे बताऊंगी जीरो स्टेशन क्या होता है एंड ऑल, ये सब हम लेबर में डिस्कस करेंगे। अभी आप बस याद कर लो कि यहाँ इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या होती हैं। उसके बाद हमको देखना है एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द मिड पेल्विस एंड द बाइस्पाइनस और ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द मिड पेल्विस। एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर कैसा हो, कहां से कहां तक जाएगा, जहां इसकी लोअर, जहां पे हमने देखा था इसकी एंटीरियर बाउंड्री कहां है, लोअर। इतना ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशन और ऑब्स्टेट्रिक डायमीटर अलग है क्या? जी, आप अभी इसका एक्सटेंशन देखो, जो प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशन है इट लाइज बिलो द कैविटी, और जो जो इनलेट था, यहाँ पे इनलेट, इनलेट में ऑब्स्टेट्रिक डायमीटर होता है। प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशन, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ मिड पेल्विस, लोअर बॉर्डर, ये कहां से एक्सटेंड करता है, लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस टू जंक्शन ऑफ S4 एंड S5। दिस इज द, दिस इज 11 to 11.5। और इसके बाद जो बाइस्पाइनस डायमीटर होता है, ईशियल स्पाइन के बीच का जो डायमीटर होता है इसको हम बोलते हैं बाइस्पाइनस डायमीटर, इंटरस्पाइनस डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर। ये होता है स्मॉलेस्ट पेल्विक डायमीटर और ये 10 सेंटीमीटर का होता है। इट इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ ऑब्स्टेट्रिक लेबर। तो पेल्विक कैविटी में हमने क्या क्या देखा है, पहले हमने पेल्विक कैविटी की बाउंड्रीज देख लिया है और इसके हमने एंटीरियर पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स डायमीटर देख लिया है। उसके बाद हमने प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशन देखा है। प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशन कहाँ पे लाई करता है, जहाँ पे ईशियल स्पाइन का प्लेन होता है वहां पे लाई करता है। इसकी ऑब्स्टेट्रिकल इंपॉर्टेंस हमने देख लिया है। उसके बाद हमने इसके डायमीटर्स देख लिए हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर और बाइस्पाइनस डायमीटर। जो इसका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है वो लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस टू जंक्शन ऑफ S4 एंड S5 पे होता है। और जो ऑब्स्टेट्रिक था वो कहां तक था हमारा, प्यूबिक सिम्फाइसिस टू, दिस इज, यहाँ पे गलत लिख गया है, दिस इज प्यूबिक सिम्फाइसिस, ओके, प्यूबिक सिम्फाइसिस टू मिड, अरे यार शिट, ये होता है सैक्रल प्रोमोन्ट्री से लेके प्यूबिक सिम्फाइसिस तक, ये सही था। ठीक है। उसके बाद फिर है पेल्विक मैम ये सारे डायमीटर्स याद करना जरूरी है? डायमीटर्स पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकता है अगर इजी क्वेश्चन पूछना है उनको।
लेकिन बेसिकली आपको जो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इनलेट का। और बाई स्पाइनस डायमीटर भी पता होना चाहिए क्योंकि इसकी ऑब्स्टेट्रिक इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हम आते हैं पेल्विक आउटलेट। पेल्विक आउटलेट लाइज एट द लेवल ऑफ ईशियल ट्यूब्रोसिटी। यहाँ पे इमेज देखो, ये है हमारा पेल्विक आउटलेट। बेसिकली इस शेप का होता है। एंटीरियर साइड पे क्या प्रेजेंट होता है? प्यूबिक सिम्फाइसिस, यहाँ पे होगा कॉक्सिक्स, यहाँ पे प्यूबिक आर्च प्रेजेंट होगा, और इधर सैक्रोट्यूबरस, यहाँ पे ईशियल ट्यूब्रोसिटीज होंगी, और सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट होगा। तो बेसिकली ये डायमंड शेप का होता है। एंटीरियरली प्यूबिक सिम्फाइसिस, पोस्टीरियरली बाय द कॉक्सिक्स, सॉरी, और इसके बाद यहाँ पे प्यूबिक आर्च होता है, फिर ईशियल ट्यूब्रोसिटी, और फिर सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट होता है। तो पेल्विक आउटलेट लाइज एट द लेवल ऑफ ईशियल ट्यूब्रोसिटी। अब इसके भी डायमीटर होते हैं, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर। इसको देख लो, लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस टू टिप ऑफ कॉक्सिक्स, ये कितना तक होता है? ये होता है 11.5 से लेके 13.5 तक, ठीक है। और फिर होता है बाई ट्यूबरस डायमीटर बिटवीन द ट्यूब्रोसिटीज, ठीक है, ये होता है 11 सेंटीमीटर का। तो पेल्विक आउटलेट में हमारे पास एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर है और बाई ट्यूबरस डायमीटर है। इसके अलावा एक होता है एंटीरियर सजाइटल प्लेन और एक होता है पोस्टीरियर सजाइटल प्लेन। ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द एंटीरियर सजाइटल प्लेन। एंटीरियर सजाइटल प्लेन का जो एपेक्स होता है वो कहाँ लाई करता है? एट द प्यूबिक सिम्फाइसिस। और ये है हमारा पोस्टीरियर सजाइटल प्लेन, ये वाला पार्ट। इसका अपेक्स कहाँ लाई करता है? एट द कॉक्सिक्स। इसका भी एक डायमीटर होता है, एंटीरियर सजाइटल डायमीटर, जो बाई ट्यूबरस डायमीटर को बाइसेक्ट करेगा। एक्सटेंड फ्रॉम द, लेट मी रब दिस फर्स्ट, ओके। तो अगर ये वाला डायमीटर यहां से यहां तक है, दिस इज द एंटीरियर सजाइटल डायमीटर। ये क्या करेगा? ये जो ट्रांसवर्स डायमीटर है ना, बाई ट्यूबरस डायमीटर, इसको बाइसेक्ट करता है। और इसका जो नीचे वाला पार्ट होगा, दिस इज द पोस्टीरियर सजाइटल डायमीटर। तो अभी हमने क्या क्या चीजें देखी हैं? हमने देखा है मैटरनल पेल्विस, उसके बाद हमने इनलेट और कैविटी और आउटलेट देख लिया है। इनलेट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद करो। एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर और ऑब्लिक डायमीटर। आपने अगर घई देखी होगी, घई में एक टेबल बनी हुई है, ऐसे ही मतलब थोड़ा अप्रोक्सीमेट डायमीटर की उन्होंने एक टेबल बना रखी है कि एंटीरियो पोस्टीरियर, ऑब्लिक और ट्रांसवर्स। तो एंटीरियो पोस्टीरियर इन्होंने ले लिया है 11, ऑब्लिक ले लिया है 12, और सॉरी मैं घई बोल रही हूँ यार, हट, ट्रांसवर्स 13 सेंटीमीटर, ठीक है। घई नहीं बच्चों, दत्ता में दिया हुआ है ये टेबल। एंटीरियो पोस्टीरियर है 11 सेंटीमीटर, ऑब्लिक है 12 सेंटीमीटर, और ट्रांसवर्स है 13 सेंटीमीटर। दिस इज ऑफ इनलेट। उसके बाद हमने कैविटी देखा है, कैविटी के सारे डायमीटर 12 सेंटीमीटर के हैं। और उसके बाद हमने देखा है आउटलेट। आउटलेट में भी एंटीरियो पोस्टीरियर है और ट्रांसवर्स है। इसका एंटीरियो पोस्टीरियर 13 है और ट्रांसवर्स इसका ऑलमोस्ट 11 है। ऐसे याद करना है आपको।
Next we will see the Caldwell and Mohoy classification of pelvis. Caldwell and Mohoy ने pelvis को classify किया है 4 types में. First one is the gynecoid pelvis, which is the most common type of pelvis. उसके बाद second one is the android pelvis, which is like a male pelvis. Third one is the anthropoid pelvis. Anthropos का मतलब होता है ape like. एंड लास्ट वन इज द प्लेटिपेलॉइड और फ्लैट बाउल टाइप पेल्विस. अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होती हैं. इसको आपको याद क्या करना है इसमें कि कार्लवेल एंड मोहे ने इसको क्लासिफाई किया है. गायनिकॉइड पेल्विस इज द मोस्ट कॉमन वेराइटी. तो मोस्ट कॉमन वेराइटी कौन सी है? दिस इज द गायनिकॉइड पेल्विस. इसमें क्या होता है? रिलेशनशिप ऑफ सेकंड पॉइंट देखो, रिलेशनशिप ऑफ ट्रांसवर्स डायमीटर टू एपी. ट्रांसवर्सली ओवल होता है. ट्रांसवर्स डायमीटर जो होता है इनलेट का, ट्रांसवर्स डायमीटर एपी से बड़ा होता है. और सब प्यूबिक एंगल इज 90 डिग्री. सब प्यूबिक एंगल क्या होता है? सब प्यूबिक एंगल होता है, it is formed by the approximation of two descending pubic rami. जो pubic rami होते हैं उसके approximation से जो एंगल बनता है, this is the सब pubic angle. बेसिकली ये 85 डिग्री होता है. ये हमारे pubic rami है. उसके बाद इसमें ऑब्स्टेट्रिकल आउटकम क्या होता है, क्योंकि इट इज द मोस्ट कॉमन वैरायटी, तो ये नॉर्मल फीमेल पेल्विस होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती. जो इसमें लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स और लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन होती है हेड की, और इसमें डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है. तो इसमें ऐसा कुछ याद करने वाला नहीं है. जो नॉर्मल डिलीवरी की टाइप्स होते हैं वो सिंपल इसमें हम डाल सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास एंड्रॉइड पेल्विस. एंड्रॉइड पेल्विस इज द मेल टाइप पेल्विस. इसका जो शेप होता है ये हार्ड शेप होता है, हार्ड शेप. इसमें भी ट्रांसवर्स डायमीटर एपी से बड़ा होता है, एंटीरो पोस्टीरियर से बड़ा होता है. सब प्यूबिक एंगल जो है वो इसमें कम होता है. इसकी ऑब्स्टेट्रिकल आउटकम क्या क्या होते हैं, इसमें आपको याद क्या क्या चीजें करनी है कि इंगेजमेंट में प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट होगा. इसके अलावा जो पोजीशन होगी वो कौन सी टाइप की होगी? ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर. ठीक है. और इसमें टाइप ऑफ डिलीवरी हमें इसमें इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी होती है. इसमें डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हो सकती है. तो एंड्रॉइड पेल्विस इज द मेल टाइप ऑफ पेल्विस. इट इज हार्ड शेप्ड. इसमें ट्रांसवर्स डायमीटर इज मोर देन द एपी डायमीटर. सब प्यूबिक एंगल इज लेस देन 90. इसमें एंगेजमेंट इज डिलेड. डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट होता है और ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन इसमें कॉमन होती है. ठीक है. और इसमें डिलीवरी जो होगी उसमें इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करनी पड़ सकती है. नेक्स्ट वन इज द एंथ्रोपॉइड पेल्विस. एंथ्रोपॉइड पेल्विस इज बेसिकली द एप लाइक पेल्विस. एंथ्रोपॉस का मतलब होता है एप. लेट मी रब दिस फर्स्ट. इसमें क्या होता है, अभी हमने दोनों में देखा कि ट्रांसवर्स डायमीटर जो है वो ज्यादा है, लेकिन एंथ्रोपॉइड वाले में क्या होता है, एपी वाला एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसवर्स से ज्यादा होता है. ऑब्स्टेट्रिकल आउटकम क्या होता है इसका? इसमें डायरेक्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन जो होती है वो कॉमन होती है और नॉन रोटेशन इज कॉमन. और इसमें टाइप ऑफ डिलीवरी क्या है? फेज टू प्यूबिस डिलीवरी. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि फेज टू प्यूबिस डिलीवरी किस टाइप ऑफ पेल्विस में होती है, तो आपको आंसर लगाना है एंथ्रोपॉइड पेल्विस. तो फेज टू प्यूबिस डिलीवरी इज कॉमन विद द एंथ्रोपॉइड पेल्विस. नेक्स्ट वन इज द प्लेटिपेलॉइड पेल्विस. ये लीस्ट कॉमन होती है और इसमें जो बाउल लाइक होता है इसका शेप. इसमें भी क्या होता है? ट्रांसवर्स डायमीटर बहुत ज्यादा बड़ा होता है एपी डायमीटर से. ट्रांसवर्स वाला एपी डायमीटर से बहुत ज्यादा बड़ा होता है. इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो इंगेजिंग डायमीटर है दैट इज द
सुपर सब पेराइटल डायमीटर। अभी हम देखेंगे ये क्या है सुपर सब पेराइटल डायमीटर। बस आपने याद रखना है कि इसमें जो डायमीटर एंगेजिंग है दैट इज द सुपर सब पेराइटल। इसमें बाई पेराइटल डायमीटर एंगेज नहीं होता, एंगेजिंग डायमीटर इज सुपर सब पेराइटल। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सुपर सब पेराइटल डायमीटर किसमें पाया जाता है, एंगेजिंग डायमीटर। अभी हमने एक वर्ड देखा था एसिंक्लेटिज्म। तो एसिंक्लेटिज्म जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ हेड इज एबल टू नेगोशिएट द इनलेट बाय मींस ऑफ एसिंक्लेटिज्म। एसिंक्लेटिज्म यहाँ पे जो फिगर है ना, दिस इज द एसिंक्लेटिज्म। इसका मतलब क्या होता है, एक तरह का माल प्रेजेंटेशन होता है ये। हेड ऑफ द बेबी इज टिल्टेड टुवर्ड्स द शोल्डर। ठीक है, ये देखो ये वाला, दिस इज द एसिंक्लेटिज्म। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। हम कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस कब बोलेंगे, अगर ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट 10 सेंटीमीटर से कम होगा। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस की भी ग्रेडिंग होती है, या तो माइल्ड कॉन्ट्रैक्टेड होगा, मॉडरेट कॉन्ट्रैक्टेड होगा, या फिर सीवियर कॉन्ट्रैक्टेड होगा। माइल्ड कॉन्ट्रैक्टेड में क्या है, 9.5 से लेके 10 सेंटीमीटर तक है। मॉडरेट में क्या है, 7.5 से 9.5 है। और अगर लेस देन 7.5 है ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट, तो फिर वो हो जाएगा सीवियर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। अगर माइल्ड माइल्ड कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस प्रेजेंट है, तो इसमें हम ट्रायल ऑफ लेबर करवा सकते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है, अगर माइल्ड डिग्री का कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस प्रेजेंट है, तो ट्रायल ऑफ लेबर करवा सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है लाइक मॉडरेट और सीवियर, तो उसका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ सी सेक्शन होता है। एक वर्ड होता है सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। इसका क्या मतलब हुआ, या तो फीटस इज टू बिग और पेल्विस इज स्मॉल फॉर अ पर्टिकुलर डिलीवरी। ये आपने याद रखना है कि हर डिलीवरी में नहीं होता। जैसे सपोज करो अगर फीटस को हाइड्रोसिफेलस है, तो ये एक जो वर्ड होता है सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, ये एक पर्टिकुलर डिलीवरी के लिए होता है। और ये इट इज नॉट अ रिकरिंग इंडिकेशन फॉर सी सेक्शन। अगर ये सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन फर्स्ट वाली डिलीवरी में प्रेजेंट था, तो जरूरी नहीं है कि सेकंड वाली में हम ये बोलेंगे इसको पहले था सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन इसीलिए हमें इसकी सी सेक्शन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हर डिलीवरी के लिए हम अलग देखेंगे कि इसमें सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो हमारे यहाँ पे मैटरनल जो पेल्विस था वो हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे फीटल स्कल। फीटल स्कल में देखने से पहले यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज है वो आप देखो। फर्स्ट वन इज द वर्टेक्स। वर्टेक्स कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम द एंटीरियर फॉन्टेनेल, इमेज में आपको साफ से दिख रहा है, एंटीरियर फॉन्टेनेल टू द पोस्टीरियर फॉन्टेनेल। दिस वन इज द सिंसिपुट। सिंसिपुट कहाँ से है, फ्रॉम द ग्लैबुला। ग्लैबुला क्या है, इट इज द रूट ऑफ द nose. Sinciput extend from the glabella to the anterior fontanelle. इसको भी हम ब्राउ बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीपुट। ऑक्सीपुट कहाँ से एक्सटेंड कर रहा है, पोस्टीरियर फॉन्टेनेल से सब ऑक्सीपुट रीजन तक। और ये वाला जो पार्ट होता है, दिस इज द फेस। अब हम फीटल स्कल में सूचर देखेंगे। सूचर हमारे पास कौन कौन से हैं, सेजाइटल सूचर, कोरोनल सूचर, फ्रंटल सूचर एंड लैम्डोइडल सूचर। तो 4 टाइप्स के सूचर हैं। सेजाइटल सूचर कहाँ से कहाँ तक होगा, इमेज में देखो, दिस इज द सेजाइटल सूचर। ये जो लॉन्गिट्यूडनल वाला सूचर है, इसको लॉन्गिट्यूडनल सूचर भी बोलते हैं। तो कहाँ पे प्रेजेंट है, बिटवीन 2 पेराइटल बोन्स। उसके बाद है कोरोनल सूचर, यहाँ यहाँ पे होता है, ये वाला इधर होता है कोरोनल सूचर, बिटवीन द फ्रंटल एंड पेराइटल। उसके बाद होता है फ्रंटल सूचर यहाँ पर, और लास्ट वाला होता है लैम्डोइडल सूचर, इधर के साइड ये रहा।
बिटवीन द पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल, फ्रंटल बिटवीन द टू फ्रंटल बोन्स। सूचर हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इट अलाउज द ग्लाइडिंग मूवमेंट ऑफ वन बोन टू द अदर। उसके बाद एक टर्म होता है मोल्डिंग। मोल्डिंग का क्या मतलब होता है? ऑल्टरेशन टू द शेप ऑफ अपकमिंग हेड व्हाइल पासिंग थ्रू रेजिस्टेंट बर्थ पैसेज। इसका मतलब क्या है? बेसिकली जब बेबी पास करता है तो हेड की रीशेपिंग होती है ताकि वो वहां पे प्रॉपर्ली एक्यूमुलेट कर जाए। अब इसको मोल्डिंग को हम क्लासिफाई करते हैं ग्रेड में। जैसे हमने एग्जामिनेशन किया तो हम देखेंगे कि जो दो सूचर्स हैं वो सिर्फ टच करेंगे लेकिन ओवरलैप नहीं करेंगे। और अगर ग्रेड 2 में क्या होता है, अगर हम डिजिटल प्रेशर लगाएंगे तो इट कैन बी इजीली सेपरेटेड। और ग्रेड 3 में क्या होता है, डिजिटल प्रेशर से ये सेपरेट नहीं होता। तो दिस इज द ग्रेड 3। तो मोल्डिंग क्या होता है? इट इज द ऑल्टरेशन टू द शेप ऑफ द अपकमिंग हेड व्हाइल पासिंग थ्रू रेजिस्टेंट बर्थ पैसेज। बेसिकली इट इज अ रीशेपिंग ऑफ द हेड। इसके 3 ग्रेड्स होते हैं। इसमें सूचर सिर्फ एक दूसरे को टच करते हैं लेकिन ओवरलैप नहीं करते। ग्रेड 2 में इट ओवरलैप्स बट इट कैन बी इजीली सेपरेटेड, एंड ग्रेड 3 में ओवरलैपिंग फिक्स्ड होती है और डिजिटल प्रेशर से ये सेपरेट नहीं होती। उसके बाद हमारे पास है फॉन्टेनेल। तो अगर क्वेश्चन आता है कि टोटल फॉन्टेनेल कितने होते हैं, तो वो 6 होते हैं। लेकिन ऑब्स्टेट्रिकल इंपॉर्टेंस के लिए हमारे पास जो फॉन्टेनेल इंपॉर्टेंट है वो 2 हैं। दैट इज द एंटीरियर फॉन्टेनेल एंड द पोस्टीरियर फॉन्टेनेल। एंटीरियर फॉन्टेनेल को बोलते हैं ब्रेगमा। एंटीरियर फॉन्टेनेल को क्या बोलते हैं? ब्रेगमा। इसका शेप कैसा होता है? डायमंड शेप। और दिस इज द मेजरमेंट 3 into 3 सेंटीमीटर। Anteriorly it is bounded by the frontal, posteriorly by the sagittal and laterally by the coronal suture। यहाँ पे आप देखो जो ब्राउन वाला पार्ट है इस इमेज में, दिस इज द एंटीरियर फॉन्टेनेल। दिस, लेट मी रब दिस। किसी का माइक ऑन है, बंद कर लो। ये वाला जो पार्ट है दिस इज द एंटीरियर फॉन्टेनेल। अब इसमें देखो दिस इज द डायमंड शेप फॉन्टेनेल, anteriorly bounded by the frontal suture, posterior by the sagittal suture and laterally by the coronal suture। इसका जो ऑसिफिकेशन है वो हो जाना चाहिए 18 मंथ्स तक। अगर 24 मंथ्स तक ये ऑसिफाई नहीं कर रहा तो ये पैथोलॉजिकल हो सकता है। उसके बाद होता है पोस्टीरियर फॉन्टेनेल। पोस्टीरियर फॉन्टेनेल, इसमें 3 सूचर लाइन का जंक्शन होता है। एंटीरियरली सजाइटल सूचर होता है और पोस्टीरियरली लैम्डोइडल सूचर होता है, और दिस इज ट्रायंगुलर इन शेप। इट ऑसिफाई एट बर्थ। उसके बाद एक सजाइटल फॉन्टेनेल होता है। ये जरूरी नहीं कि हर किसी में प्रेजेंट हो, लेकिन अगर ये प्रेजेंट है तो इट इज प्रेजेंट एट जंक्शन ऑफ एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3 ऑन द सजाइटल सूचर। सपोज ये हमारा स्कल है, सजाइटल सूचर है, तो एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3 के जंक्शन पे ये प्रेजेंट होता है। लेकिन ये हर किसी में प्रेजेंट नहीं होता, इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। आपको बस याद रखना है एंटीरियर फॉन्टेनेल एंड द पोस्टीरियर फॉन्टेनेल। एक सेकेंड रुको। उसके बाद हम देखेंगे ट्रांसवर्स डायमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर जो होता है फीटल स्कल का, वो भी हम 4 पार्ट में, मतलब 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज द बाइपैराइटल डायमीटर। बाइपैराइटल डायमीटर क्यों होता है? बेसिकली दिस इज द एंगेजिंग डायमीटर, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। इट एक्सटेंड बिटवीन द 2 पैराइटल एमिनेंसेस। इसकी लेंथ होती है 9.5 सेंटीमीटर। इस इमेज में देखो आपको दिख रहा है बाइपैराइटल, जैसे सुपर सेपैराइटल यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ये 2 पैराइटल एमिनेंसेस के बीच में ये प्रेजेंट होगा।
बाईपैराइटल डायमीटर, इट एक्सटेंड बिटवीन द टू पैराइटल एमिनेंसेस। उसके बाद होता है सुपर सब पैराइटल। सुपर सब पैराइटल क्या होगा, एक साइड तो इट इज प्रेजेंट बिलो वन पैराइटल एमिनेंस और दूसरे साइड अबव वन पैराइटल एमिनेंस। यहाँ पे देखो, दिस इज द सुपर सब पैराइटल, एक साइड ये पैराइटल एमिनेंस के बिलो है और दूसरे साइड ये पैराइटल एमिनेंस के अबव है, ठीक है। तो दिस इज द सुपर सब पैराइटल, और हमने अभी देखा था दिस इज द एंगेजिंग डायमीटर इन द प्लेटिपेलॉइड टाइप। उसके बाद होता है बाईटेम्पोरल, बिटवीन द एंटीरियो इंफीरियर एंड्स ऑफ द कोरोनल सूचर, और इसके बाद लास्ट वन होता है बाईमेस्टॉइड, जो मेस्टॉइड प्रोसेस के बीच में प्रेजेंट होता है। तो ट्रांसवर्स डायमीटर में आपको याद क्या करना है, आपको याद करना है कि बाईपैराइटल डायमीटर इज द एंगेजिंग डायमीटर, बाईमेस्टॉइड इज द स्मॉलेस्ट डायमीटर। यहाँ पे आप देखो दिस इज द बाईटेम्पोरल डायमीटर, और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, बाईमेस्टॉइड डायमीटर बिटवीन द टिप ऑफ मेस्टॉइड प्रोसेस। सुपर सब पैराइटल आपको याद रखना है कि दिस इज द एंगेजिंग डायमीटर इन प्लेटिपेलॉइड टाइप। उसके बाद हम अपने मेन पार्ट पे आते हैं, स्कल के एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर पे। इसको देखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे, ऐसे करो, देखो सबसे पहले लो कंप्लीट। कंप्लीट को उर्दू हिंदी में क्या बोल सकते हैं, सब, तो ऐसे कर लो सब, ठीक है। अब सब में क्या हो सकता है, या तो कंप्लीट फ्लेक्शन होगा या तो कंप्लीट एक्सटेंशन होगा, ठीक है। कंप्लीट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सब। सब में क्या हो सकता है, या तो कंप्लीट फ्लेक्शन होगा या तो कंप्लीट एक्सटेंशन होगा, ओके। उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शंस हैं इसमें, या तो सब ऑक्सीपिटोब्रैगमेटिक होगा या फिर सब मेंटोब्रैगमेटिक होगा, ठीक है। तो आप देखो कि अगर कंप्लीट फ्लेक्शन है, अगर कंप्लीट फ्लेक्शन है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, सब ऑक्सीपिटो या सब ऑक्सीपिटो या सब मेंटो। अगर फेस प्रेजेंटेशन होता है, यहाँ पे देखो कंप्लीट फ्लेक्शन में क्या होता है, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक, और इसमें प्रेजेंटेशन कैसा होता है, वर्टेक्स। और अगर हमारे पास फेस प्रेजेंटेशन होता है तो होता है कंप्लीट एक्सटेंशन, और इसमें कौन सा होता है, सब मेंटो ब्रैगमेटिक। ऐसे याद करो कि कंप्लीट फ्लेक्शन में होता है सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक और कंप्लीट एक्सटेंशन में होता है सब मेंटो ब्रैगमेटिक। सब मेंटो ब्रैगमेटिक में प्रेजेंटेशन, यहाँ पे मेंटम आएगा, मेंटम इज द चिन वाला पार्ट, तो मेंटम में प्रेजेंटेशन होगा फेस, और ऑक्सीपुट में प्रेजेंटेशन होगा वर्टेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा कंप्लीट, कंप्लीट को हम हिंदी में बोल सकते हैं सब, ठीक है। तो सब में क्या आ सकता है, या तो ऑक्सीपिटो वाला आएगा या मेंटो वाला आएगा। कंप्लीट के दो ही पार्ट हो सकते हैं, या तो कंप्लीट फ्लेक्शन होगा या फिर कंप्लीट एक्सटेंशन होगा। अब आप खुद सोचो कि अगर कंप्लीट फ्लेक्शन है तो ऑक्सीपिट ऊपर की साइड आना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऑक्सीपिट ऊपर की साइड है, कंप्लीट वाले में जो डायमीटर होता है ब्रैगमा वाला डायमीटर होता है, और ब्रैगमा वाले कौन से हैं, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक या फिर सब मेंटो ब्रैगमेटिक। अगर फ्लेक्शन है तो सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक, और इसमें प्रेजेंटेशन क्या होगा, वर्टेक्स। और सब मेंटो ब्रैगमेटिक में प्रेजेंटेशन क्या होगा, फेस, ठीक है। फिर आप एक लिखो ब्रैगमेटिक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ब्रैगमेटिक में कितने वर्ड्स हैं टोटल, 9 वर्ड्स हैं। तो अगर कहीं पे ब्रैगमा वाला आ रहा है तो बेसिकली वो 9 वाला होगा, ठीक है, 9.5 सेंटीमीटर। तो अगर ब्रैगमेटिक वाले दोनों जो होते हैं, सब मेंटो ब्रैगमेटिक, सॉरी, सब मेंटो ब्रैगमेटिक हो या फिर सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक हो, दोनों को लेंथ कितनी होगी, 9.5, ठीक है। तो आप याद कर लो कि ब्रैगमेटिक जहां पर है वहां पे 9.5 सेंटीमीटर उसका मेजरमेंट होगा, ठीक है। हमने क्या देखा अभी, हमने देखा कंप्लीट।
कंप्लीट मतलब होता है सब सब, ठीक है। अब सब में दो टाइप्स होते हैं, फ्लेक्शन या फिर एक्सटेंशन। आप खुद सोचो, अगर कंप्लीट फ्लेक्शन है तो ऑक्सीपिट हमारा प्रेजेंटेशन होगा, तो इसमें वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होगा, तो सब ऑक्सीपिटो वाला सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर इसमें होगा। और इसकी जो जहाँ पे ब्रैग्मा ब्रैग्मा आ रहा है ब्रैग्मेटिक वाला, वहां पे लेंथ जो है वो 9.5 सेंटीमीटर होगी। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक एंड द सब मेंटो ब्रैग्मेटिक। सब ऑक्सीपिटो कहां से जाएगा, फ्रॉम द नेप ऑफ द नेक टू द ब्रैग्मा। और सब मेंटो कहां से जाएगा, फ्रॉम द जंक्शन ऑफ फ्लोर ऑफ द माउथ टू द ब्रैग्मा, ठीक है। ऑक्सीपिटो का है, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक ऑक्सीपिट के नीचे है, तो नेप ऑफ द नेक से ब्रैग्मा तक जाएगा। और सब मेंटो ब्रैग्मेटिक मेंटम के नीचे है, तो जंक्शन ऑफ फ्लोर ऑफ द माउथ एंड नेक से लेके ब्रैग्मा तक जाएगा। लेट मी रब दिस फर्स्ट। मैं बस आपको याद करने का थोड़ा सा तरीका बता रही हूँ कि इसको याद कैसे कर सकते हैं। सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक हमने देख लिया, सब मेंटो ब्रैग्मेटिक देख लिया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे डी फ्लेक्शन। डी फ्लेक्शन में या तो क्या होगा, पार्शियल डिफ्लेक्शन होगा या फिर कंप्लीट डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। पार्शियल डिफ्लेक्शन होगा या फिर कंप्लीट डिफ्लेक्शन होगा। जहां भी डिफ्लेक्शन आएगा वहां पे आएगा हमारा फ्रंटल वाला डायमीटर। डिफ्लेक्शन के साथ कौन सा वर्ड है, फ्रंटल वाला। फ्रंटल वाला इज एसोसिएटेड विद द डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब आप देखो फ्रंटल वाले हमारे पास कौन से हैं, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल या फिर ऑक्सीपिटो फ्रंटल। तो अगर पार्शियल है या फिर इनकम्प्लीट है तो कौन सा हमारे पास होगा, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ठीक है। और अगर कंप्लीट है, पूरा है, मतलब कि डिफ्लेक्शन इज मार्क्ड, तो हमारे पास होगा ऑक्सीपिटो फ्रंटल। तो अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है तो वहां पे हमारे पास फ्रंटल वाले डायमीटर आएंगे। और फ्रंटल वाले हमारे पास दो हैं, पार्शियल सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल एंड कंप्लीट में ऑक्सीपिटो फ्रंटल। सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल कितना का होता है, दिस 10 सेंटीमीटर, और ऑक्सीपिटो फ्रंटल इज 11.5 सेंटीमीटर। तो अभी हमने क्या क्या देखा, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, दिस इज फ्रॉम द सब ऑक्सीपिट टू द फ्रंटल। आप नाम से इसको याद करो कि सब है ऑक्सीपिट से नीचे है, तो नेप ऑफ द नेक से होगा, और फ्रंटल से टू द एंटीरियर एंड ऑफ द एंटीरियर फॉन्टनेल और सेंटर ऑफ द सिंसिपुट, ठीक है। ये कहां से जाएगा, एक्सटेंड फ्रॉम द नेप ऑफ द नेक टू द एंटीरियर फॉन्टनेल के एंटीरियर एंड पे या फिर सिंसिपुट तक के सेंटर पे। और ऑक्सीपिटो फ्रंटल जो है वो ग्लैबिला तक जाएगा, ऑक्सीपिटल एमिनेंस से ग्लैबिला तक जाएगा। अब हमारे पास है मेंटो वर्टिकल। ऐसे एक कार होती है BMW, ऐसे याद करो। तो अगर प्रेजेंटेशन ब्रो है, इसको W को V कर लो। अगर प्रेजेंटेशन ब्रो है तो मेंटो वर्टिकल डायमीटर होगा, इंगेजिंग डायमीटर, ठीक है। अगर प्रेजेंटेशन ब्रो है तो मेंटो वर्टिकल डायमीटर होगा। और सपोज करो हम ऐसे मान लेते हैं कि BMW जो है वो लार्जेस्ट कार है, तो अगर BMW लार्जेस्ट कार है तो मेंटो वर्टिकल डायमीटर भी लार्जेस्ट डायमीटर होगा, ठीक है। तो हमने 5 यहाँ पे डायमीटर देख लिए हैं, हमारा कौन सा बचा है, सिर्फ एक बचा है, दैट इज द सब मेंटो वर्टिकल। सब मेंटो वर्टिकल कहां से जाएगा, मेंटम के नीचे से अप टू द extend from the junction of floor of the mouth and neck to the highest point of sagittal suture. This is 11.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे इमेज में आप देख लो, बस आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो याद रखना है अभी, मेंटो वर्टिकल ये लार्जेस्ट डायमीटर होता है, 14 सेंटीमीटर का होता है, एसोसिएटेड विद ब्रो प्रेजेंटेशन, ठीक है। उसके बाद हमने देख लिया था कि कंप्लीट वाले में सब वाला आता है, कंप्लीट फ्लेक्शन या कंप्लीट एक्सटेंशन। और हमने देख लिया कि डी फ्लेक्शन के साथ हमेशा फ्रंटल वाला डायमीटर होता है।
उसके बाद दिस इज द लास्ट स्लाइड। एक होता है कैपर्ट सक्सीडेनम एंड सिफेल हेमाटोमा। ये इसमें इसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये दिस इज द स्लाइड टेकन फ्रॉम द बुक सॉरी रोम्स। रोम्स में दिया हुआ है कि कैपर्ट सक्सीडेनम और सिफेल हेमाटोमा को हमें पहले डिफरेंशिएट करना है कि ये होता क्या है। कैपर्ट सक्सीडेनम जो होता है, अगर प्रोलॉन्ग लेबर है उसकी वजह से सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग हो जाती है, और ये एक बोगी टाइप स्वेलिंग होती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सूचर लाइन को क्रॉस कर लेती है और इट इज प्रेजेंट इमिडिएटली आफ्टर बर्थ, और विद इन 2 to 3 days के अंदर ये रिजॉल्व कर जाती है और इसका कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जो सिफेल हेमाटोमा होता है, इट अकर्स बिकॉज जब हम फोर्सेप यूज करते हैं, कोई भी इंजरी होती है पेरियोस्टियम को, तो उस इंजरी की वजह से एक लोकलाइज स्वेलिंग होती है जो सिर्फ एक साइड प्रेजेंट होगी, डज नॉट क्रॉस द सूचर लाइन। ठीक है, और ये डिसअपियर भी करेगी विद इन 2 weeks to 3 months। इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड है, हेमोलिसिस हो रही है, तो यहाँ पे प्रोलॉन्गेशन ऑफ जॉन्डिस ड्यू टू हेमोलिसिस। तो इसका आफ्टर इफेक्ट क्या हो सकता है, सिफेल हेमाटोमा का आफ्टर इफेक्ट हो सकता है जॉन्डिस का प्रोलॉन्गेशन। लेकिन कैपर्ट सक्सीडेनम खुद से रिजॉल्व कर जाता है और इसका कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं होता। दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच।